Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum students. Welcome to the online class session of the course Advances in Bioinformatics Bio 703 offered in MPhil Biotechnology for the semester Spring 2026. In last class we discussed about the history of bioinformatics and किस तरीके से एक फील्ड का एडवेंट होता है जहाँ पे इस फील्ड का मे बी उस वक्त तक उसका जो नेम है वो क्वाइन ना किया गया हो बट द नीड ऑफ द टाइम वाज कि जैसे जैसे सीक्वेंसेस की डाटा बढ़ता जा रहा था तो वहाँ पे हमारे पास उसकी इंफॉर्मेशन है वो इंक्रीज होती जा रही थी तो उसके एनालिसिस के लिए हमारे पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना ज़रूरी था जहाँ पे हम कंप्यूटर को यूज़ करके उस इनॉर्मस डाटा को एनालाइज कर सकें। तो इसमें हमारे पास तीन साइंटिस्ट थे, मार्गरेट ओकले डेहॉफ, सेकंड वाज द रिचर्ड Eck and the third was रॉबर्ट लेडली। तो इन तीन साइंटिस्ट ने कंबाइन होके एंड सेपरेटली कुछ ऐसे कंट्रीब्यूशंस की इन दिस फील्ड कि जिसने इस फील्ड का बेसिस रखी गई। कुछ ने सीक्वेंस इंफॉर्मेशन पे रखी, कुछ ने प्रोग्रामिंग को यूज़ करके, कुछ ने फाइलोजेनेटिक्स के एडवेंट्स को यूज़ करके इस फील्ड की बेसिस को रखा गया। Alright, up till now we have 9 students out of 13. Okay, so let us start from the definition of bioinformatics. क्या कहते हैं? The term bioinformatics was coined by a fourth man, which is Pauline Hogwedge and Ben Hesper in 1978 in a recent review article. In a recent review article recapitulating the history of bioinformatics, Hoggebeck stated that the term had been used by the scientists since the beginning of the 1970s. ठीक है, काम कब स्टार्ट हुआ? 1961 में, 64, 65, 67, बट ये टर्म यूज़ हुई ये 70s की स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुई, but was formally crowned in 1978 in an article written in Dutch. In the beginning, the term was used to mean the study of informatic processes in biotic systems. Bioinformatics is basically informatics as applied to biology, that is, the computer aided analysis of biological data. There are many definitions, descriptions of the bioinformatics. Some of these definitions make no distinction between the bioinformatics and computational biology as a whole. फिर एक definition को इन्होंने बताया कि bioinformatics is conceptualizing biology in terms of molecules in the sense of physical chemistry and then applying informatics techniques derived from disciplines such as applied math, computer science, and statistics to understand and organize the information associated with these molecules on a larger scale. एक चीज़ कि यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है इसमें बायोलॉजी के अलावा जिन तीन फील्ड्स की एग्जीक्यूशन हो रही है वो है अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और स्टैटिस्टिक्स। इन तीन की इम्प्लीमेंटेशन से हम
बायोलॉजिकल डाटा को स्मॉलर स्केल से लार्जर स्केल पे एनालाइज किए जा सकते हैं। Hudson Atwood provided two definitions of bioinformatics that are same in spirit but stated in two different ways. क्या है? Bioinformatics is the development of computational methods for studying the structure, function, and evolution of genes, proteins, and whole genomes. एक ये चीज। और secondly, bioinformatics is the development of methods for the management and analysis of biological information arising from genomics and high throughput experiments. ओवरऑल क्रक्स तो एक ही है, बट इसमें दो डिफरेंट एस्पेक्ट से बताया गया है। एक तो ये कि कंप्यूटेशनल मेथड्स जिनके ज़रिए से हम जीन की सीक्वेंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन प्लस उनकी एवोल्यूशन, मतलब उनमें जो चेंजेस हो रही हैं उसको हम स्टडी कर सकें। और सेकेंडरी ये कि एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक ऑर्गेनिज्म में मौजूद जो भी इंफॉर्मेशन रिलेटेड पाथवेज हैं, मतलब कि वो तमाम मेटाबॉलिक पाथवेज जिनमें प्रोटीन्स एंड डीएनए इन्वॉल्व हैं, उनके एनालिसिस और प्लस हाई थ्रूपुट एक्सपेरिमेंट्स की एनालिसिस के लिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स को यूज़ किया जाता है। Therefore, for molecular biologists, bioinformatics is the discipline of computer-aided analysis of information relating to genes, genomes, and their products, यानी कि proteins, enzymes, RNA. In other words, for all practical purposes, bioinformatics can be regarded as computational molecular biology that uses computational techniques to study the structure, function, regulation, and interactive network of genes and proteins. The ultimate goal is to analyze and predict the structure, organization, function, regulation, and dynamics of the entire genome of an organism. क्या कहते हैं? यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें हैं, डाटा की एनालिसिस, फिर उस एनालिसिस की मदद से हमें जीन या प्रोटीन का स्ट्रक्चर, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसका फंक्शन, रेगुलेशन एंड डायनामिक्स, ये तमाम चीज़ें स्टडी को हम ओवरऑल समझते हैं कि ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डोमेन में आती हैं। बायोइन्फॉर्मेटिक्स वर्सेस कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। Computational biology is an umbrella term that
includes any subdiscipline in biology that uses computer aided analysis, modeling, and prediction. Some examples include the modeling of predator prey relationships in an ecosystem, the modeling and prediction of population and community dynamics in an ecosystem, quantitative structure activity relationships, and prediction of the biological effects of chemicals, predictions of metabolic fate of chemicals in vitro, and pharmacokinetic modeling of drugs and xenobiotics, etc. देखिए बायोइन्फॉर्मेटिक्स में particularly we are focused on the sequence information underlying the DNA, RNA and protein. लेकिन computational biology, although बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज द सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, लेकिन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी ब्रॉडर टर्म है और इसमें हम बहुत सारे डिफरेंट अदर एवेन्यूज को भी स्टडी करते हैं, इकोसिस्टम्स को, पॉपुलेशन डायनामिक्स को, फिर केमिकल्स को, केमी इन्फॉर्मेटिक्स, ये तमाम चीज़ें हम कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स का डायरेक्टली पार्ट नहीं है. In contrast, bioinformatics can be regarded as the computational molecular biology as indicated above. Therefore, according to the definitions discussed in this book, computational biology is much broader in scope and bioinformatics is a part of it. Bioinformatics, like other areas of computational biology, is essentially a multidisciplinary science because it uses techniques and concepts from a number of disciplines such as molecular biology and biochemistry, computer science, statistics and mathematics and informatics. ठीक है, ये डिफरेंस हमें एक क्लियर हो जाता है कि इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है. So goals of bioinformatic analysis. क्यों ज़रूरत पड़ रही है हमें आज के दौर में बायोइन्फॉर्मेटिक करने की? क्या ऐसे एक्सपेरिमेंटल साइंसेस के दरमियान में एक नॉन फिजिकल एक्सपेरिमेंटल लैब, इसमें हम एक्सपेरिमेंट्स तो करते हैं बट सारे के सारे कंप्यूटर बेस्ड होते हैं, तो क्या इसकी ज़रूरत है? द अल्टीमेट गोल ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज़ टू बी एबल टू predict the biological processes in health and disease. In order to acquire such an ability, a thorough understanding of the biological processes is necessary. Therefore, the proximate goal of bioinformatics is to develop such an understanding through analysis and investigation of the information obtained on genes and predicts, as well as to develop new tools and uh, continuously improve the existing set of tools for diverse types of analysis. क्या कहते हैं कि हमारे पास अब आज के दौर में इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग है कि एक सिंगल जीन, एक सिंगल प्रोटीन, एक सिंगल एंजाइम, एक सिंगल ऑर्गन, एक सिंगल डिजीज़, एक सिंगल पैथोजन एट अ रियल टाइम एग्जिस्ट नहीं करता. हर एक लेवल पे बहुत डायनामिक एग्जिस्टेंस कर रही होती है मॉलिक्यूल्स की, एंटिटीज़ की. सो इस इनॉर्मस डाटा को मैनुअली डील करना डेफिनेटली इट्स आउट ऑफ द हैंड्स. डिजीज़ है तो डिजीज़ के सिम्टम्स होते हैं, मल्टीपल डिजीज़ होती हैं, मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं दैट आर कॉजिंग सच डिजीज़, और उन डिजीज़ के जो इफेक्ट है वो मल्टीपल जीन्स पे भी हो रहा होता है, उनके एक्सप्रेशन पे. तो ये तमाम चीज़ें ऑल्दो एग्जिस्ट आज भी कर रही हैं, पहले भी कर रही थी, बट इनकी रियल अंडरस्टैंडिंग के लिए वी नीड टू हैव बायोइन्फॉर्मेटिक्स एज अ स्ट्रॉन्गर टूल.
Bioinformatics also aims to develop tools that help in the management and access to data information, including the improved search and retrieval capabilities of genomic data and information from various types of databases. Some examples of common bioinformatic tools and analysis that are continuously being improved and the data capture and storage capability. ये अब वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में रिसेंटली जिन पे ऊपर काम किया जा रहा है। ठीक है, पहली चीज़ ये है कि डाटा को कैप्चर करना और उनकी स्टोरेज। डाटा मीन्स डेफिनेटली डीएनए, आरएनए, प्रोटीन। वो उनकी सीक्वेंस को फाइंड आउट करना और उसको स्टोर करना। द यूजेबिलिटी ऑफ डेटाबेसेस। अब वो जो डाटा स्टोर हुआ है उससे डाटा को रिट्रीव करना और उससे मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना। डेटा एनालिसिस, उस एक्सेस करने के बाद उसी डेटा के ऊपर मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स रन करना। न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन सीक्वेंस एनालिसिस। ठीक है, ये उसी में आ जाता है कि सेपरेटली वो एल्गोरिथम्स जो कि न्यूक्लिक एसिड के एनालिसिस के लिए यूज़ हों और फिर सेपरेटली प्रोटीन सीक्वेंस के एनालिसिस के लिए यूज़ हों। एंड सीक्वेंस एनोटेशन। एनोटेशन होता है जिसकी एक इजी वे में कह सकते हैं लेबलिंग। ठीक है, डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस, these are just the combination of amino acids or nucleic acids, but इनमें स्टार्ट कोडॉन किधर है, स्टॉप कोडॉन किधर है, जीन प्रोमोटर सीक्वेंसेस किधर है, ऑपरेटर सीक्वेंसेस, रेप्रेसर सीक्वेंसेस। अगर हम इंट्रॉनिक रीजन की बात करें तो लाइन, साइन, सेटेलाइट, मिनी सेटेलाइट, एसएनपीज, वीएनटीआर, ये सब जो सीक्वेंस की एग्जिस्टेंस है विद इन दी जीनोम, इनकी लेबलिंग को हम एनोटेशन कहते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड प्रिडिक्शन ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर। ठीक है, डीएनए और आरएनए चाहे जोन सी भी सीक्वेंस हो, हम हमेशा एक ही स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करती है, डबल हेलिकल या सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए, डीएनए की बात करते हैं तो हम हमेशा डबल हेलिकल, डबल डीएनए स्ट्रैंडेड। लेकिन जो प्रोटीन है, अगर एक सेल में मौजूद 20,000 प्रोटीन है तो 20,000 हर एक का स्ट्रक्चर जो है वो दूसरे से डिफरेंट होगा, और दैट डिफरेंस इन द स्ट्रक्चर डिटरमाइंस differences in their functions, और that is due to differences in their sequences। तो ये चीज़ कि प्रोटीन का हमें स्ट्रक्चर फाइंड आउट हो जाए तो उससे हम प्रोटीन के फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पता कर सकते हैं, इंक्लूडिंग दी थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोटीन डोमेन प्रिडिक्शन। डोमेन क्या चीज़ होती है कि प्रोटीन का फंक्शनल पार्ट, प्रोटीन 100% जो अमीनो एसिड हैं वो फंक्शनल नहीं होते। प्रोटीन का एक सर्टेन पैच ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि फंक्शनल होते हैं, जो उस प्रोटीन को कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, उसको डोमेन कहते हैं। और जब हमें प्रोटीन का डोमेन आइडेंटिफाई हो जाता है उसकी सीक्वेंस, तो वहाँ से हम उस प्रोटीन का फंक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। जीन प्रिडिक्शन। जीन प्रिडिक्शन वही, यानी कि एक जीनोम में अल्फ़ाबेट्स तो मौजूद हैं, इंट्रॉन्स के बाद कहाँ से एक्सोनिक रीजन स्टार्ट होता है, प्रोमोटर सीक्वेंस, ऑपरेटर सीक्वेंस, स्टार्ट कोडॉन, स्टॉप कोडॉन, इस चीज़ की प्रिडिक्शन को जीन प्रिडिक्शन कहते हैं। और इससे मिलने वाली इंफॉर्मेशन को जीनोम एनोटेशन। एनालिसिस ऑफ फंक्शनल स्टडीज, एनालिसिस ऑफ जीन एंड प्रोटीन नेटवर्क्स एंड फाइलोजेनेटिक एनालिसिस। प्रोटीन क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन, या फिर प्रोटीन इंटरेक्ट किन किन और प्रोटीन से कर रहा है यूजिंग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। ये, और थर्डली के प्रोटीन्स जो होती हैं वो आपस में फाइलोजेनेटिकली किस तरह से लिंक्ड है या डाइवर्स्ड है। तो इन तमाम की ज़रूरत हमें आज पड़ रही है और इसी को हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स के ज़रिए सॉल्व करते हैं। The analytical tools in bioinformatics are computer algorithms and statistics। सबसे पहली चीज़ कंप्यूटर एल्गोरिथम और स्टैटिस्टिक्स।
इसकी मदद से हम डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करते हैं। एल्गोरिथम क्या चीज़ होती है? एल्गोरिथम का सिंपल मीनिंग है सीरीज ऑफ स्टेप्स। मिसाल के तौर पर इसकी एग्जांपल इस तरीके से ली जा सकती है कि आप बच्चों ने एक एम फिल के स्टार्टिंग में एक एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया, उसको जमा करवाया, फीस जमा करवाई। अब उसका फाइनल रिजल्ट क्या हुआ कि आपके सीएबीएस पे आपके सारे के सारे कोर्सेज शो हो रहे हैं, और उनके जैसे फॉल 2025 गया तो उनमें मार्क्स ऑटोमेटिकली शो हो गए। तो एक सीरीज ऑफ इवेंट स्टार्ट हो गया। एडमिशन फॉर्म से डाटा आपका सिस्टम्स में एंटर हुआ, उन सिस्टम से डिफरेंट क्लासेस में गया, क्लासेस के बाद उनमें कोर्सेज रजिस्टर हुए, टीचर्स अपॉइंट हुए, क्रेडिट आवर्स मेंशन किए गए, ये सब चीज़ें स्टेप बाय स्टेप चलती गई। तो ये एक एल्गोरिथम जनरेट हो गया एडमिशन फॉर्म फिल करते हुए। ऐसा नहीं कि हमें हर स्टेप पे जाके जो स्टूडेंट था उसको इनिशिएट करे कि अभी आप कोर्स रजिस्टर कर दें, अभी आप टीचर रजिस्टर कर दें, अभी आप हमारा प्रोग्राम हमारा रजिस्टर कर दें। इस तरीके से नहीं, सीरीज ऑफ स्टेप्स ऑटोमेटिकली ये चलते गए। तो स्टैटिस्टिक्स इसलिए भी कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स में चूँकि हमेशा हम डेटा की बात करते हैं, लास्ट डेटा की, तो लास्ट डेटा की हैंडलिंग के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उसको किसी न्यूमेरिकल फॉर्म में सेग्रीगेट कर सकें, उसकी ग्रुपिंग कर सकें, और इस सब के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स यूज़ करना पड़ती है। इम्प्रूवमेंट्स इन द कैपेसिटी ऑफ existing tools and development of the new tools are both driven by the need for the newer dimensions and greater speed of analysis, as well as the ability to handle an ever increasing amount of data. तो ये भी चीज़ है कि न्यू टूल्स बन रहे हैं, या दूसरी तरफ के जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश टूल्स हैं उनके अंदर एडवांसमेंट्स हो रही है। और इन दोनों की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हमारे पास जो मॉलिक्यूलर डाटा है उसकी अमाउंट दिन ब दिन इंक्रीज हो जा रही है। However, the success and prediction uh, accuracy of bioinformatic analysis ultimately depends on our knowledge of the biology of organisms. Therefore, as more data accumulates in the databases and more scientific information becomes available, the progress of science and its prognostic ability will require and hence dictate the development of new bioinformatic tools। क्या कहते हैं कि हमेशा देर इज़ अ मार्जिन ऑफ एरर इन एवरी एनालिसिस, लेकिन ये मार्जिन ऑफ एरर कैसे रिड्यूस होगा? हमारे पास डाटा जैसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूमुलेट होगा, तो हम वी कैन आइडेंटिफाई कि हमारे पास जो प्रिडिक्शन के एरर्स हैं वो मिनिमाइज हो सके। मिसाल के तौर पर हमारी हमें ट्रेन किया जाता है, लेट्स से कि एक जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो एक फुटबॉल है, ठीक है। अब हमारे पास एक दूसरे किस्म की स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लाया जाता है, और हमें बता दिया जाता है कि दिस दिस जो शेप है दैट इज़ अ डिफरेंट एंटिटी। तो ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कि एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। वन इज़ फुटबॉल, सेकंड इज़ बास्केटबॉल। थिर्डली अगर हम साइज कंपैरिजन की बात करें तो हमारे पास स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स कैन एग्जिस्ट इन अ वेरी लार्ज स्केल, दैट इज़ प्लैनेट्स और मून्स। ऑल्दो उनकी जो फिजिकल डायमेंशन है वो वैसे ही एग्जिस्ट करती है जैसे इन ऑब्जेक्ट्स की है, बट साइज डायमेंशन के हवाले से उनकी टोटल जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट कैटेगरी में चली जाती है। तो ये चीज़ कि जैसे जैसे हमारे पास डाटा इंक्रीज होता जाएगा,
हमारी अंडरस्टैंडिंग अबाउट दोज फिजिकल एंटिटीज विल डेवलप। सिमिलरली बायोलॉजिकल डाटा, चाहे वो प्रोटीन का फंक्शन के हवाले से हो, उसका स्ट्रक्चर के और सीक्वेंस हो, जैसे जैसे ये डाटा इंक्रीज होता जाएगा तो एल्गोरिथम जो हमने डिज़ाइन किया है उनकी एनालिसिस वाली कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती जाएगी। ये सिर्फ डेवलपमेंट के लिहाज से नहीं, हम अपने जो नॉर्मल डेली लाइफ में एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उस पे एक पॉपुलेशन का नंबर होता है, एन नंबर, जो हम अपने डाटा में शो करना होता है। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी बैक्टीरिया की आइडेंटिफिकेशन करनी है तो हम अगर एक सॉइल सैंपल ले रहे हैं तो सॉइल सैंपल के 3 रिकॉर्ड्स बना लेंगे या 3 डिफरेंट रीजन से हम उसको परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास के जितने नंबर ऑफ सैंपल्स इंक्रीज होंगे, उनकी जितनी कंसेंससली हमारे पास रिजल्ट जनरेट होंगे, उसकी बेसिस पे हम मोर ऑथेंटिकली उस रिजल्ट को वैलिडेट कर सकते हैं। Acquisition of more data than information, storage of all that information, expression of databases, new strategies needed for analysis, and advances in computing power are all expected to facilitate the analysis of large volumes of data and discovery of new biological principles and insights from which underlying principles of life and its एवोल्यूशन कैन बी डायरेक्टेड। अब इस तमाम जो प्रैक्टिस की जा रही है, इससे हम उन एवेन्यूज़ को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनके बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग फ़िलहाल कम है। और जितनी अंडरस्टैंडिंग के बाद ज़्यादा होगी, हम लाइफ को उतने अच्छे तरीके से समझ सकेंगे और लाइफ को समझ के हम लाइफ को एक बेटर वे में गुजारने के लिए गाइडलाइंस एंड पॉलिसीज़ को हम डिटरमाइन कर सकेंगे। ठीक है। बायोइन्फॉर्मेटिक टेक्निकल टूल बॉक्स को हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।